हाँ रिया, Yes, sir. आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। Yes, sir. A very good morning, all. I, Riya Singh, student of B.Ed first year of CSGM University, presenting for the paper first, that is Philosophical Perspectives of Education, under the guidance of Mr. S.C. Patel, sir, and Dr. R.P. Saini, sir. And here, my topic is Philosophy of Islamic Education. So, before I just begin with my presentation, let us know what is Islam. अगर हम इस्लाम धर्म को समझना चाहते हैं तो इसे हम एक सेंटेंस में समझ सकते हैं, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि जो इस्लाम धर्म को मानना था कि जो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है, और जो मोहम्मद साहब हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। अब रसूल का क्या मतलब होता है? रसूल का मतलब है कि जो ईश्वर और इंसान के बीच का एक मीडियम, एक माध्यम, जिसको हम धर्मदूत कह ले या फरिश्ता कह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कहा जा सकता है कि यहाँ इस्लाम धर्म में जैसे वेदांत दर्शन में ब्रह्मा वॉज द सुप्रीम पावर, उसी तरीके से जब इस्लाम धर्म की बात की गई, यहाँ इन्होंने ईश्वर का जो रूप का नाम दिया, अल्लाह, अल्लाह नाम दिया। इनके लिए अल्लाह सर्वोपरि है। यहाँ पर अल्लाह वही ईश्वरी सत्ता है जिसमें ये बिलीव करते हैं, जिसमें ये फेथ रखते हैं। इसके अलावा ये किन किन चीज़ों में फेथ रखते हैं? ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते। अब बात आ रही है यहाँ मोहम्मद साहब जो रसूल हैं। लेट अस नो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म अरब देश के मक्का शहर में हुआ सन 571 एडी में। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी मैरिज एक विडो से हुई, हर नेम वाज खलीजान, उनके साथ इनका विवाह हुआ। This was the brief introduction about Islam. Now let us know what this term Islam stands for. The word Islam comes from the Arabic word Islam, means peace, meaning submission to Allah, Allah के प्रति समर्पण। Holy book is Quran. Followers are Muslim. Prophet Muhammad, and the place of worship is masjid or mosque. And I must tell you, this Islam religion is the second largest religion in the world. The people who follow the Islam religion, for them, God has commanded 5 duties to them. They are also known as 5 pillars of Islam. What are they? Shahada, Sahla, Zakat, Hajj, and fasting. The very first is Shahada, means faith. Faith in God, in Allah. इनका मानना था कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। सेकंड साला मीन्स प्रेयर, नमाज। इसमें कहा था that people who follow the Islamic religion would conduct namaz 5 times and they should keep doing them timely. The third is zakat, means charity. In this, one should donate at least 2.5% of his income to whom? To the poor, to the helpless people, orphans, widows, and needy people. But remember, never show off while doing it. Then the fourth is Hajj. इसमें कहा गया अगर आप सक्षम हैं, then undertake Hajj once in your life. After that, swam, siyam or fasting means roza. इसमें कहा गया that one should undertake roza for the whole month of Ramzan. And why we should keep roza? Because it would remind you of hunger. It will have a good impact on your health, and all your evils जो भी आपके विरोधी हैं, they will be eradicated in the remembrance of Allah. Now, we will discuss the areas of Islamic philosophy of education. Here you can see it is categorized into 3 forms. Metaphysics, which is all about the God and his attributes. Second is epistemology,
which is the concept of knowledge, and the last is axiology, means the concept of values. So to the very first is ontology. So the ontology is the branch of metaphysics. इसमें यह बताया गया है कि इस्लाम की क्या रियलिटी है और इस्लाम में क्या रियलिटीज की बात करते हैं, क्योंकि जो मेटाफिजिक्स है वो रियलिटी की बात करती है कि नेचर ऑफ यूनिवर्स है तो किस तरह से है, किस तरह से हमें यहाँ रहना है और इसकी क्या रियलिटी है. सो वी विल टॉक फर्स्ट अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी. सो इसमें ये कहा गया कि जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, वो अल्लाह द्वारा निर्मित है और अल्लाह के कुल वर्ड के प्रोनाउंस करते ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है. और इसमें यह भी कहा गया कि जो अल्लाह है वो क्या है, निराकार है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है. The second is world or the universe. So this world is a creation of Allah, means जो इस्लाम धर्म, अल्लाह के जो मानने वाले लोग हैं उनका बिलीव है कि जो वर्ल्ड, जो दुनिया, जितनी भी गैलेक्सीज है या जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला ने खल्क की है. और इस्लाम में ये चीज़ भी बताई गई कि हर एक चीज़ क्रिएट की गई है, किसके द्वारा, अल्लाह के द्वारा. और डेफिनेटली जब कोई चीज़ क्रिएट की गई है तो उसका कोई क्रिएटर भी होगा, तो वो कौन है, अल्लाह. देन द थर्ड इज अल्लाह's रिलेशन टू मैन. सो अल्लाह का मैन से क्या रिलेशन है. इसमें इस्लाम कंसिडर्ड मैन एज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम में मुसलमानों को असफल मखलूकात के तौर पे कॉन्शियस गिफ्ट प्रोवाइड किया है कि जितने भी मखलूक हैं उनमें सबसे टॉप पोजीशन पर अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसानों को दी गई है. Now the next is soul. So according to the Islamic religion, there are several souls and God has created them all and ultimately they will go back to Allah only. Then man's power. So इसमें ये बताया गया कि जो reality of universe and the man are purposeful, which means ultimate reality, the God is any limitation and is pure and absolute power. And the next is death. तो इसमें कहा गया जब मनुष्य का मृत शरीर जब कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ उनका अनंत जीवन शुरू होता है, जिसे हम बरज़ाक भी कहते हैं. And the life after death. So इसमें कहा गया that on the day of annihilation, means on the day of क़यामत, अल्लाह उनके कर्मों का हिसाब लेते हैं और उसी के बेसिस पर उन्हें पैराडाइज या हेल भेजते हैं. प्लस दिस इस्लामिक फिलॉसफी डज नॉट बिलीव इन रीबर्थ, ये पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखते. देन एपिस्टेमोलॉजी. सो हियर द इस्लाम एक्सेप्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज. इन्होंने नॉलेज को दो डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. पहला एक फिजिकल डोमेन, सेकंड स्पिरिचुअल डोमेन. फिजिकल डोमेन में इन्होंने मटेरियल एंड सोशल लाइफ को रखा है, वहीं स्पिरिचुअल नॉलेज में इन्होंने नॉलेज ऑफ इस्लाम की बात की है. देन अब फिर इन्होंने ये बताया है कि वी कैन अटेन द फिजिकल नॉलेज बाय 3 वेज. कौन कौन से, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन एंड हक़ुल यकीन. द वेरी फर्स्ट इज इल्मुल यकीन, means deductive knowledge by inference, or we can say that determining by guess. Second, ainul yaqin, means observatory knowledge by perception, by visual perception. And the third is haqul yaqin, means empirical knowledge by personal experience or intuitions, by determining or tactile perception. So here we can conclude that जो इस्लाम धर्म है और जो दर्शन है वो भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में इंद्रियों को स्वीकार करता है. आफ्टर दैट, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ इस्लाम रिलीजन एंड फिलॉसफी. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ वैल्यू. इसके थ्रू हम गुडनेस और वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं. इसमें अच्छाई और बुराई के बीच डिफर कर पाते हैं और साथ ही साथ अपने और दूसरों के बीच कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, अब हम ये देखेंगे.
So the very first is our faith should be true and sincere. तो इसमें ये बताया गया है कि हमें सही तरीके से और सिंसियर तरीके से पेश आना चाहिए. We must be prepared to show it in deed of charity to our fellow men. इसमें यह भी कहा गया है कि अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी कैसे पेश आना चाहिए, उनकी हेल्प, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें जो ज़रूरतमंद है उनको चैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. देन वी मस्ट बी अ गुड सिटीजन, हमें एक अच्छा नागरिक होना चाहिए. हमें अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हम अपने शहर का, अपने इलाके का ख्याल रखना चाहिए. देन आवर ओन इंडिविजुअल सोल मस्ट बी फर्म एंड अनशेकन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. इसमें इट मीन्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड आवर ओन सोल और किस प्रकार से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए हर सिचुएशन के लिए. Now, let's see the fundamental principles of Islamic religion and philosophy. This world is created by Allah or God. तो इसमें यह बताया गया है कि ये दुनिया, ये सृष्टि अल्लाह या ईश्वर द्वारा निर्मित है. Allah has created all material and beings of this world, and He look after them all. Then the material world is mortal but real, and the spiritual world is eternal. मीन्स जो भौतिक संसार है वो नश्वर है लेकिन वास्तविक है, और जो आध्यात्मिक दुनिया है वो शाश्वत है. उनके दृष्टि में शाश्वत मतलब स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ, व्हिच इज कॉल्ड बरसात. देन द मैन इज द सुप्रीम, अल्लाह इज शेपलेस एंड सोल्स आर क्रिएटेड बाय हिम. इन्होंने ये कहा कि अल्लाह निराकार है और जो आत्माएं हैं वो उनके द्वारा बनाई जाती हैं, और एट लास्ट ये आत्मा अल्लाह के पास जाना चाहती है. मैन इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह. जैसे कि हमने देखा पहले भी दैट मनुष्य अल्लाह का सर्वोच्च रचना है. मैन्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन हिज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डीड्स एंड अल्लाह's ग्रेस. तो इसमें यह कहा गया कि मनुष्य का विकास, उसकी आध्यात्मिक शक्तियां वो कर्मों और अल्लाह की कृपा पर निर्भर करती हैं. इसमें इस्लाम में अल्लाह को बहुत ही दयालु बताया गया है, और जो लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, जो अपनी इच्छाएं मांगते हैं, अल्लाह के रहमो करम पर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं. देन नाउ वी विल टॉक अबाउट द इस्लामिक एजुकेशन. सो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्होंने दो पार्ट्स में एजुकेशन को डिवाइड किया. पहला मटेरियलिस्टिक नॉलेज एंड सेकेंड इज स्पिरिचुअल नॉलेज. भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों पर इन्होंने ध्यान दिया है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, बिकॉज इन्होंने सांसारिक शिक्षा पर उतना ही बल दिया जितना कि धार्मिक पर. दिस इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लामिक एजुकेशन. So now we will see the definition of aims of education by one of the Islamic scholar. So जामी बनाल इल्म के अनुसार वो कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करो, नवीन ज्ञान की खोज करो, सीखो क्योंकि शिक्षा धर्म की ओर प्रवृत्त करती है, बुद्धि को जगाती है, अकेलेपन का साथी है, सामाजिक संबंध बनाने में सहयोग करती है और धन भी लाती है. Now we will see the aims of education. Education के क्या उद्देश्य हैं? So to the very first is development of knowledge. So यहाँ मोहम्मद साहब ने बताया है कि ज्ञान एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसी से इंसान धर्म और अधर्म के बीच फर्क कर सकेगा, पाप और पुण्य के बीच फर्क कर सकेगा. इसलिए मोहम्मद साहब ने अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो अपने अनुयायी, उनको उपदेश दिया कि भले ही आप दान दें या ना दें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दें, उनको ज्ञान जरूर दें. तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि एक बच्चे या एक व्यक्ति की कलम की स्याही एक शहीद के खून से भी अधिक पवित्र होती है. तो यहाँ इन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया है. सेकेंड इज कल्चरल डेवलपमेंट. तो अब कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा?
सो जब एक बच्चा मकतब या मदरसे में पढ़ने जाता है तो वहाँ पर एक धार्मिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वहाँ नमाज का समय फिक्स्ड होता है, मतलब उस समय नमाज होनी ही होनी है। या वहाँ धर्म से रिलेटेड जितनी भी ज्ञान, जो भी उनके कुरान पाक में उपदेश दिए गए हैं, उन सब का ज्ञान भी इम्पोर्टेंट बताया है। साथ ही साथ इन्होंने भौतिक वाली दुनिया का उपभोग करना भी उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट बताया है। देन मॉरल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर इन्होंने नैतिकता पर भी काफी जोर दिया है, विच कुड बी डेवलप्ड बाय द नॉलेज। अगर हम इस्लाम से उनकी बात करें तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि इनके द्वार अगर गैर इस्लामिक कोई व्यक्ति है उसके लिए भी उतने ही खुले जितने कि इस्लाम धर्म के अनुयायी के लिए खुले थे। सो इस तरीके से बहुत से जो अन्य धर्म के लोग ने भी यहाँ पर आकर मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति को जाना, समझा, वहाँ ज्ञान अर्जन किया और उनकी सभ्यता में, उनकी एजुकेशन सिस्टम में, उनका बिलीफ सिस्टम में अब बहुत हद तक उन्होंने विश्वास भी प्रकट किया। देन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो मोहम्मद साहब ने बताया कि अगर एक व्यक्ति का चरित्र उत्तम नहीं है तो वो किसी प्रकार की सफलता या कुशल व्यक्तित्व हासिल नहीं कर सकता। सो इसीलिए बेसिकली स्कूल हुआ करते थे जिन्हें मदरसे या मकतब के नाम से जानते हैं। तो वहां पर बेसिकली बच्चों के ये व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण पे फोकस किया जाता था। देन ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, स्किल एंड ऑक्यूपेशन। So as I told you, Islam believe in both materialistic and spiritual knowledge. रीजन इनका ये भी था कि कोई इनका ये मानना था कि रिबर्थ पर इनका कोई बिलीव नहीं था, पुनर्जन्म पर ये विश्वास नहीं रखते थे। इनका कहना था कि जो कुछ भी है बाहर नहीं है, जो कुछ भी है इसी लोक में रहते हुए हर एक व्यक्ति को सारी संसारिक सुख सुविधाओं का भी उपभोग करना चाहिए, उनका भी भोग करना चाहिए। सो दैट इसीलिए इन्होंने कहा कि धार्मिकता बिल्कुल जरूरी है, उसके साथ भौतिकता उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देन एजुकेशन ऑफ इस्लाम। सो इसके बारे में इन्होंने कहा कि बेसिकली इन्होंने यहाँ पे सांस्कृतिक का प्रचार प्रसार करने का एक पवित्र साधन माना गया है इस्लाम धर्म में, कि जो काफिर होते थे, काफिर का मतलब जो भी उनके धर्म के नहीं मानने वाले लोग थे, उनको इस धर्म के बारे में बताना, समझाना और इस धर्म में उनको लेकर आना। सो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपनी जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार पर भी काफी बल दिया। जो कोई भी व्यक्ति है जो काफिर है, वो इस्लाम धर्म में अगर कन्वर्ट कर लेता है तो उसे हम कहते हैं गाजी। सो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि इस्लाम धर्म में एक मेन फोकस था कि इस्लामिक रिलीजन का प्रचार प्रसार करना, सो दैट मैक्सिमम लोग इस धर्म से जुड़ सकें। सो इस तरह से इन्होंने धीमे धीमे देश के कोने कोने सारे अपने संसार में इसके प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम था इस्लामिक रिलीजन का प्रसार प्रसार करना। इसलिए इन्होंने शिक्षा के माध्यम से प्रचार पर ज्यादा फोकस किया। तो नाउ द मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं? सो द फर्स्ट इज इमिटेशन मेथड, मीन्स अनुकरण विधि। सो इसमें ये था कि बच्चे अगर इन्हें समान शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है रोट लर्निंग। इसका प्रयोग यूजुअली इस्लामिक धर्म में प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। धार्मिक स्तर पर उच्चारण और हस्तलेखन भी इसी विधि से पढ़ाया जाता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल उच्च शिक्षा में भी किया जा सकता है। देन द लेक्चर, स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन मेथड, मीन्स व्याख्यान, भाषण और स्पष्टीकरण विधि। जो भी मौलवी होते थे इस्लामिक धर्म में, जो भी शिक्षा देने का काम करते थे, वहां पर
चाहे मकतब हो या मदरसे। सो वो उस टॉपिक को अपना पूरा लेक्चर देते थे, उसमें हर बच्चा अपनी योग्यता अनुसार ज्ञान को प्राप्त करता था। देन लॉजिक मेथड, इसमें तर्क के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। देन सेल्फ स्टडी मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड मीन्स स्वाध्याय विधि, इससे तात्पर्य है स्वयं खोज करने की विधि। सो इस मेथड में एक छात्र पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करता है और तथ्यों को सीखता है। विद्यार्थी प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ता है और उन्हें समझता ही स्वाध्याय विधि है। इसका उपयोग उच्च शिक्षा में भी किया जाता है। देन डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस मेथड, प्रदर्शन, प्रयोग और अभ्यास विधि। तो इस धर्म में इस मेथड का उपयोग शिल्प और कौशल सिखाने के लिए किया जाता है। शिक्षक शिल्प और कौशल का प्रदर्शन करता है और छात्र उसका अनुसरण करता है, उसकी नकल करता है और अभ्यास के माध्यम से दक्षता प्राप्त करता है। नाउ डिसिप्लिन। अब इस्लामिक धर्म में डिसिप्लिन कैसा था? सो अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो बेसिकली यहाँ पर डिसिप्लिन काफी स्ट्रिक्ट था और यहाँ पर इन्होंने प्रत्येक अनुयायी मतलब प्रत्येक फॉलोअर के लिए आत्म संयम को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। सो इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आत्म संयम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो भी फॉलोअर, जो भी अनुयायी होते हैं, स्पेशली इस्लाम धर्म के, वो सभी के सभी अल्लाह में, पैगंबर में यहाँ अपनी उस धर्म के ज्ञानी विशेषज्ञ लोग होते हैं, उनमें बहुत आस्था रखते हैं, उनके लिए मन में बहुत आस्था होती है, बहुत इज्जत होती है। सो हियर हम डिसिप्लिन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट था, काफ़ी स्ट्रिक्ट कार्यवाही भी होती थी बच्चों के लिए। लेकिन हुआ ये कि सारा जो जितना भी स्ट्रिक्टनेस थी धीमे धीमे बदलती चली गई तौबा की प्रक्रिया में। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ। इसके लिए यहाँ पर आत्म संयम को भी इम्पोर्टेंट बताया कि आत्म संयम हर इंसान को होना चाहिए और अपने आप को इंसान निरीक्षण करे, खुद से खुद को डिसिप्लिन में रखता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन इस्लामिक एजुकेशन? तो यहाँ पर जो टीचर्स होते थे, उन टीचर्स के लिए बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उनका स्थान सबसे ऊपर रखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया टीचर्स को इस्लामिक धर्म में। दूसरी बात, यहाँ जो टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी होती थी, उनको उनके धर्म का विशेष ज्ञान होना चाहिए, उनको शरीयत के बारे में भी पता होना चाहिए अच्छे से, और साथ ही साथ संसारिक ज्ञान भी बहुत अच्छे और परिपक्व तरीके से उन्हें होना चाहिए। और यहाँ टीचर का मेन एम था कि जो भी बालक हो, जो भी शिष्य हो, उनको बुराई से अच्छाई की ओर लेकर जाना। सो इस तरह से जो स्कूल्स होते थे, जो मकतब या मदरसे जो भी होते थे, वहाँ पर शिक्षक भी की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई गई है, इसलिए उनका एक वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी था। देन वी विल लुक अबाउट द स्टूडेंट्स इन इस्लामिक फिलॉसफी। सो जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं, किसी विद्यार्थी के इस्लाम धर्म के बारे में, तो यहाँ पर शिक्षा या किसी ज्ञान को तभी अर्जित कर पाएगा जब वह सच्चे दिल से अपने धर्म में, अपने अल्लाह में, अपने पैगंबर में, उस धर्म के ज्ञानी लोगों में, जो भी है उनकी शिक्षा दे रहे हैं, उनमें वो सच्चे दिल से विश्वास रखेगा, श्रद्धा रखेगा, और साथ ही साथ इन सबसे उसके मन में एक भय भी होगा। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के लिए शिक्षक के द्वारा बताई गई जो भी चीज़ें हैं या जो भी धर्म के उपदेश हैं, उनको आत्म से याद करना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया। इनफैक्ट यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए कहा गया है कि जितनी भी नश्वर चीज़ें हैं, उनके लिए भी लालसा करना एक व्यर्थ है। अब यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया। पहला बिस्मिल्लाह, दूसरा मकतब जिस मेनली फॉर द
primary education, then madrasa for the higher education. So अब इनके करिकुलम की बात करते हैं. So मकतब में बेसिकली एजुकेशन दी जाती थी, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट लाइक उर्दू, अरबिक और पर्शियन. Then about the stories of Muslim fakirs in the poem of Persian poet. यहाँ पर ग्रामर और लिटरेचर को भी ध्यान दिया गया है. Then history of laws of Islam, astrology, history, geography, agriculture, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. फिर मदरसे की बात करें तो उन्होंने दो पार्ट्स में एजुकेशन को डिवाइड किया है. पहला रिलीजियस, दूसरा सेकुलर एजुकेशन. तो रिलीजियस एजुकेशन में इन्होंने इंटेंसिव और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कुरान की बात की गई है. इंटेंसिव स्टडी ऑफ इस्लामिक लॉ, सूफिज्म एंड हेरिटेज ऑफ मोहम्मद साहब. भाई अगर सेकुलर एजुकेशन की बात करें तो इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अर्थमेटिक, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड फिलॉसफी को रखा है. अब हर एक रिलीजन का कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं. तो लेट्स इवेलुएट दिस इस्लामिक रिलीजन. सो अब अगर इनकी मेरिट्स की बात करें तो द फर्स्ट इज मोनोथिज्म, मींस फेथ इन गॉड. इन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है, ये एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं. देन बिलीव इन कुरान. सो उन्होंने कुरान पाक में ये बहुत विश्वास रखते हैं, जिसे बेसिकली कहा गया है कि ईश्वर या अल्लाह की वाणी, मीन्स अल्लाह का जो भी संदेश है वह कुरान पाक में है. देन यूनिवर्सल एजुकेशन. सो यहाँ पर सभी जनों के लिए शिक्षा, मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ इस्लाम के फॉलोअर्स है उन्हीं के लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. गैर इस्लामिक हैं वे भी शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं. फिर आध्यात्मिक शिक्षा की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हज और नमाज की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. देन होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ पर विकास की बात की गई है. तो शिक्षा का उद्देश्य ये था कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है एक इंडिविजुअल का. इसमें हर पक्ष के विकास की बात की गई है, वेदर इट इज मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट और spiritual development. So these are the merits of Islamic philosophy. अब अगर हम demerits की बात करें तो very first is neglecting of women education. इसमें कोई इस्लामिक फिलॉसफी में महिलाओं की शिक्षा के विशेष प्रबंध नहीं थे. इनफैक्ट शुरुआत में एक समय में देखा जाए तो राजा महाराजाओं के टाइम पे सिर्फ उनके लिए कि जो उनके घर की महिलाएं थी उनके लिए शिक्षा का प्रावधान था. एक समान व्यक्ति के लिए किसी भी स्त्री के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था शिक्षा को लेकर. देन हार्श पनिशमेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड कि डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था. तो यहाँ पर अगर या कोई चोरी या हत्या भी करता था या ऐसी कोई वारदात होती थी तो इनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे. अगर किसी ने चोरी की है तो उसके हाथ कटवा देना, इस तरह के पनिशमेंट्स थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इस्लाम एंड एजुकेशन. That's it. Thank you. रिया, Yes, sir. बहुत ही सारगर्भित प्रेजेंटेशन आपका था. Thank you, sir. आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं. कोई फीडबैक देना चाहेगा? अल्ताफ जी सर. बताइए थोड़ा. नहीं सर, अच्छे से एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत ब्रीफली समझाया और डेप्थ में जाके समझाया था. एकदम सही. और करिश्मा खान, आप बताएंगे बेटा कुछ? जी सर, बहुत अच्छे से समझाया, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया. चलिए, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत ही सारगर्भित. Thank you, sir. वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा. कल रोशन सिंह का है.
रोशन रोशन आवाज आ रही बेटा?